Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the chapter Gravitation. So basically हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी gravitation में study किया है, we will be talking that, right? And we will be revising that whole concept. तो आज का जो आपका chapter है, that is of the revision one, ठीक है? स्पेशली अब आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें ओपन करके रखना है, राइट? और जो भी चीज़ें आपसे मिस हो गई हों, प्लीज़ नोट दैट डाउन. आज आपका वो दिन है जब आप अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हो बेसिकली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू रिवाइज द होल कंसेप्ट, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. ऑलराइट, तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज whole chapter with me. All right, and you do know that this is an important chapter for the examination, either it is the school examination or Olympiad. So basically we are studying that, for that we can prepare ourselves for the competition examination, right? So we all deal with the NTSC, NSC, JS, PRMO along with your school examinations and along with the 6 to 8 Olympiads level. All right, that is the main thing we deal with. Then if you want any TPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTP009 in the search box of the Telegram app. If you write that, then you will be getting the list of our channel. Then you can join the channel for class line and you can get all the DPPs and study material available over there. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot. This is the team actually which is going to help you a lot, and we are making it it's easy for you all to crack the examination because we are preparing you for the science and the mathematics Olympiad. So if you are interested in science Olympiad, go for the science videos. If you are interested in the maths Olympiads, go for the mathematics videos, right? And we all deal with the science and math Olympiads. That means the subjects are the physics, chemistry, bio along with maths and math. Basically we are preparing you for that, and that is our main goal, that we are providing these lectures free for everyone, and that's why you make sure that you share them with your friends and everyone so that they can also get the knowledge free of cost basically. And if you are really interested in cracking the examination, you should definitely study from these. And if you have any query, you can definitely comment on each video if you are interested, right? That is the most important thing. And also these are free, right? And that's why the only thing should be is your hard work. You should study from these videos, do the work you need to do the homework, do the questions, do your readings and all, right? And definitely if you have any query, you can definitely comment in the comment section, and that would be so good if you study with them. And so we have fulfill our aim so that we are preparing you for the examination. That is our must goal. In accordance to that, we have also prepared some packages for you. So if you are interested in getting a proper you can say procedure of preparing the examination, you can join our packages. For that you have to go on the website www.talkingtextbooks.in. so if you go on that website, you will be getting two type of packages, the full one and the test series. Full one contains the comprehensive study material, so you will be getting a study material which is basically a very good one because it is very much focused on a particular examination, and that's why you will be getting the question based on that examination, the level of the questions from based on that examination, and that's why this is important. You will be getting the video classes and the live classes. Next you will be doing the homework and you will be submitting to us. So basically that will be a homework submission feature, and then you will be getting tested twice a week. You are going to test it, right? That means you need to study and then you give a test every week twice, right? That is the most important thing, because frequent testing can get you more information about which topic is strong for you and weak for you, right? And then you will be getting the periodic test papers so that you can get the idea of how the pattern of a competitive examination is, right? Or maybe you will be getting the number of questions you need to attempt in a particular time period, level of the questions you will be getting. So basically it is like the rehearsal of the final examination, right? So all such features are going to help you a lot in your preparation journey. If you are interested, you can buy them, and if you are interested in the only testing part, then you can definitely join the test series. You will be getting the periodic test papers, recorded and live classes along with the bi-weekly quizzes, so you can definitely join them, right? And if you are interested in buying them, you can remember my code CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in.
and if you have any query regarding these packages, how they will be going to benefit you, or maybe you want to ask how this procedure can help you, right? So that is the main thing. You can call us on the number 919549041111. So call us on this number and tell us your query so that all your queries will be resolved, right? That is the most good thing, so that we can have a basic thing ki how these packages are going to benefit you. You will be knowing that and get the knowledge about that. All right, now let's get started. So before that, promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. This is a revision class, it's okay. And then even then, after this revision class, you are going to revise 15 minutes a day daily. That should be the minimum thing. All right, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन रिवाइज मोर, राइट, तो आप 1 आवर 2 आवर डेफिनेटली रिवीजन के लिए अलग से रख सकते हैं, बट मेक श्योर यू रिवाइज डेली एंड मिनिमम टाइम शुड बी द 15 मिनट्स. तो अगर आपको 1 आवर 2 आवर नहीं देना है रिवीजन को, तो कम से कम 15 मिनट्स तो पक्का दो, ठीक है. दैट वुड बी सो मच गुड, बिकॉज इससे आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होते जाएंगे. एंड व्हेन यू विल गिव द NTSC NSCGS इन क्लास 10, आपके ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे. इवन आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, राइट. दैट इज द मेन थिंग इफ यू डू दैट इन द राइट मैनर. ऑल राइट, सो दैट इज द प्रॉमिस यू शुड टेक टू योर सेल्फ. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे बात करते हैं. हम लोगों ने ग्रेविटेशन का जो स्टार्टिंग था वो यहाँ से किया था कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो अपने आसपास की चीज़ों को जो होते ही थे, मतलब जो हो रही हैं, जो फिनोमेनाज हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो उनको बहुत ऑब्जर्व करते थे, राइट. एंड ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बहुत तरह की थ्योरीज आती हैं, राइट. बहुत तरह की थ्योरीज लिखी जाती हैं. फिर किसी और ने आके, फिर नेक्स्ट किसी जनरेशन ने आके कुछ और नया पता लगाता है, जो कुछ और नया अगर उन्हें पता लगता है तो पुरानी थ्योरीज़ को जो है हटा दिया जाता है, नई थ्योरीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है. तो ऐसे ऐसे करते करते आज जो हमारे पास नॉलेज है ग्रेविटेशन के बारे में और अबाउट एनी अदर टॉपिक, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज़ द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, राइट. एंड इसी के लिए सबसे पहले जब ऐसा माना जाता था, जब लोगों ने देखा कि भाई सन जो है ईस्ट से निकलता है और जाके वेस्ट में चला जाता है, राइट, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई सन मूव कर रहा है. सो दे थॉट दैट कि अर्थ के अराउंड सन मूव करता है, मीन्स अर्थ सिचुएटेड है एक जगह और जो सन है वो अर्थ का चक्कर लगाता है. वो उन्होंने ये जो है अपना कंसेप्ट दिया, राइट. लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता चला, दे डिड सम रिसर्च अबाउट इट, दे डिड सम कैलकुलेशन, राइट, तो उन्होंने फिर ये बताया कि भाई जो सन है वो है सेंटर में एंड अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, राइट. और इंडियन में सबसे अच्छे जो थे दैट वाज आर्यभट्ट, राइट. तो उन्होंने आर्यभट्ट ने ये बताया था दैट सेंटर में है सन एंड अर्थ इज सराउंडिंग दैट, राइट, रिवॉल्विंग अराउंड दैट सन. दैट इज़ द मोस्ट गुड थिंग, बिकॉज ये आर्यभट्ट ने बताया, दैट्स वाई, राइट. इसी के अलावा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी ग्रेविटेशन, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली. इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, दैट वाज द टाइको ब्राहे. इन्होंने क्या किया था, ही डिड सम कैलकुलेशन एंड द ऑब्जर्वेशन, राइट, एंड ही डिड सम रिसर्च अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स. कैसे मोशन करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, व्हाट कैन बी द चेंजेस और व्हाट कैन बी द थिंग्स कि वो एक ऑल्टरनेट बिहेवियर शो करते हैं, राइट. दैट इज़ द मेन थिंग. जैसे कि हमारा एक प्लैनेट, जैसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, राइट, तो वो क्या करता था एक्चुअली में, वो दूसरों के ऑर्बिट को क्रॉस आउट करता था. तो यहाँ पे क्रॉस आउट करने का जो क्राइटेरिया था, इनके बिहेवियर्स को शो करने का जो क्राइटेरिया था, इन सबको स्टडी किया जब टाइको ब्राहे ने. और राइट, सो ही डिड सम रीडिंग्स एंड ऑल, उन्होंने अपनी रिसर्च लिखी. बट लेटर ऑन उन्हीं के प्यूपिल कौन थे, जोनास केपलर. इन्होंने एक्चुअली में सारी रीडिंग्स को ऑब्जर्व करके ही स्टेटेड सम लॉज, 3 लॉज ऑफ द प्लानिटरी मोशन. और राइट, एंड ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग था या फिर इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना था, अरेंज करना था, वो काम किन्होंने किया, जोनास केपलर ने, राइट. ही एक्चुअली यू कैन से इनकैप्सुलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू द 3 लॉज, राइट. एंड द मेन थिंग, टाइको ब्राहे ने क्या किया था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिसर्च ऑब्जर्व किया, ही डिड द कैलकुलेशंस एंड ऑल. तो ये उनका रिसर्चिंग टाइम था. और दैट इज द थिंग यू नीड टू नो अबाउट दीज 3 पीपल.
ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो देखो ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है और वो ये क्या कहता है दैट यूनिवर्स में प्रेजेंट एक बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी वी कैन से, यूनिवर्स में प्रेजेंट एवरी बॉडी, यूनिवर्स में प्रेजेंट एवरी अदर बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो दे आर लाइक बोथ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, alright, and that is the thing, that is the universal gravitation law, means चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो लेकिन but because of their mass they are attracting towards each other, right, they try to pull other one towards themselves, that is the universal gravitation law, alright, and that was a universal, why, because यूनिवर्स में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट के लिए दिस इज एप्लीकेबल, राइट। तो अगर किसी बॉडी के पास मास है दैट मीन्स ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ फॉलो हो रहा है, ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, अब इसका जो स्टेटमेंट है कि भाई कितना फोर्स लग रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें बताने के लिए न्यूटन ने फॉर्मूला बताया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। तो फॉर्मूला इज बेसिकली वो ये बोल रहा है अगर m मास की बॉडी है, ठीक है, m1 एंड m2 मास की टू बॉडीज़ हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r, दैट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ द बॉडीज़, ठीक है। तो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज r, राइट। अगर ऐसा पॉसिबल है देन द फॉर्मूला वुड बी व्हाट, देन द फॉर्मूला वुड बी, यू कैन से द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and the force is directly inversely proportional to the square of the distance between them, alright। combine करने के बाद we will be getting this much formula, F equals to g m1 m2 divided by r square। here g is the universal gravitational constant because ये जो law है पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी फॉलो कर रही है, राइट। दैट इज वाई ये जो g है दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि m1 m2 और आर स्क्वायर, राइट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। ये आपको बताता है कि अगर m1 मास की बॉडी है, m2 मास की बॉडी है, इन दोनों के बॉडीज़ के बीच में r डिस्टेंस है जो कि मेजर है फ्रॉम देयर सेंटर्स, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो इतना होगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। इफ़ यू वांट टू नो द डायरेक्शन देन डेफिनेटली एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने तरफ फोर्स लगाएगी, तो डायरेक्शन शुड बी द अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द बॉडीज, राइट। तो ऐसी लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है जो इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स का डायरेक्शन होगा एंड दैट वुड बी द अट्रैक्शन फोर्स, राइट। अब देखो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं किसके लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर उसका वैल्यू देखने के लिए इट्स अ कांस्टेंट, राइट, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। सबके लिए ये g कांस्टेंट है और पूरे यूनिवर्स में ये g कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ तभी चेंज होगा जब आप यूनिट्स का कन्वर्जन करोगे, ठीक है। तो मतलब इसका वैल्यू यूनिट्स पे ही जो है डिपेंड कर रहा है, और वरना इसका जो मेन वैल्यू दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि भाई ये जो f है वो किसके बराबर है, या फिर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है वो किसका वैल्यू क्या है और वो किसकी इक्वल है, उसके लिए हमने क्या किया है, फोर्स बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिख दिया, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 जो है लेंगे, m1 क्या लेंगे हम, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर हम दोनों ही बॉडीज़ को एक एक kg का कर दें, ऑलराइट, हम फिक्स कर दें खुद से, सो इफ वी मेक दिस 1 kg एंड 1 मीटर का होल स्क्वायर, राइट, इफ वी मेक दैट, तब हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑलराइट। तब जाके हमें उसका वैल्यू जो है मिलने वाला है, और इसका जो वैल्यू है जो SI यूनिट में है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और CGS के अंदर देख सकते हैं हम 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो बेसिकली यू कैन सी दैट ये जो वैल्यू है वो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पे ही चेंज हो रही है, राइट, उसके अलावा इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी, आगे हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स सी व्हाट आर दोज, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके थे, राइट। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे करता है, बिकॉज देखो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो दूसरे बॉडी भी
उस पहली बॉडी को अपने तरफ खींचेगी विद द सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। ऑलराइट, तो दे वुड बी लाइक applying the force into the opposite direction, alright, and there is one is doing the action and the other is doing as an reaction, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट यू कैन सी ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। सो द डिस्टेंस, दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर किया था वो हमने सेंटर से ही मेजर किया था। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, दोनों को सेंटर से ही मेजर किया है हम लोगों ने, और ये जो फोर्स होता है ये सेंटर की तरफ ही लगता है। मीन्स एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज द सेंट्रल फोर्स, राइट। अब आप देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ये जो दो बॉडीज है, लेट्स से दो बॉडीज जिनके बीच में हमने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला निकाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है, तो इन बॉडीज को आप चाहे वैक्यूम में मेजर कर लो, ठीक है, इन दोनों बॉडीज को वैक्यूम में रख के मेजर कर लो इन दोनों के बीच का फोर्स, चाहे आप एयर में रख के कर लो, चाहे आप वाटर में रख के कर लो, दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस फोर्स डजंट इवन डिपेंड ऑन द मीडियम, राइट। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे वैक्यूम में जो है कैलकुलेट कर लो, वाटर में कर लो, मरकरी में कर लो, ठीक है, एयर में कर लो, किसी भी मीडियम में कर लो, द फॉर्मूला और जो कि उसका यू कैन से द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी द कांस्टेंट वन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हो फोर्थ वन कि भाई ये दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से भी कोई इसे फर्क नहीं पड़ता। एक तो मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, दूसरा इसे तीसरी बॉडी से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स में आप देख सकते हो कि उसके बीच में मतलब सन और अर्थ के बीच में मरकरी भी आता है, राइट, वो भी रिवॉल्व करता है, उसका भी पाथ आता है बीच में, वीनस का भी पाथ आता है, राइट। लेकिन इन दोनों बॉडीज का जो बीच में प्रेजेंट होती हैं या फिर कभी कभी हो भी सकती हैं व्हेन एवर देयर आर चांसेस और कंडीशंस देयर, राइट, तो इन दोनों की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही रहेगा अगर कोई तीसरी बॉडी और द थर्ड बॉडी वहां पर प्रेजेंट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो फोर्स है ये किसी और बॉडी के प्रेजेंस से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये मीडियम से भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लाइटर बॉडीज के लिए तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। लाइटर बॉडीज जस्ट लाइक दैट, जैसे आप हैं, ठीक है, आपके रूम में अलमीरा है, ठीक है, एंड आपके रूम में बेड है, तो अलमीरा और बेड दोनों के पास मास है, बोथ टू बॉडीज आर एक्चुअली हैविंग अ मास एंड दैट्स व्हाई वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बट वो बहुत ही लाइट बॉडीज है, यू कैन से एज कंपैरिजन टू द प्लैनेट, राइट। प्लैनेट के मास के कंपैरिजन अगर करेंगे तो वो अलमीरा और वो बेड वुड बी लाइक वेरी 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 लाइट बॉडीज, राइट, एंड दैट्स व्हाई उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज नेग्लिजिबल, राइट। इसी वजह से वो अपनी जगह पे रखे हुए हैं इजीली, और राइट। लेकिन अगर हैवी बॉडी होती है जस्ट लाइक अर्थ एंड द सन और कोई और अदर प्लैनेट, सो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर एक्चुअली में अट्रैक्टिंग होंगे, सो इट बिकम्स अप्रिशिएबल और यू कैन से वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, ठीक है। मासिव बॉडीज के लिए हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटेशन फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, दैट मीन्स बहुत दूर तक जो है डिस्टेंसेस तक ये एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप खुद सोच सकते हो इतने सारे प्लैनेट्स हैं और इतनी दूर दूर है फिर भी वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही दूर तक एप्लीकेबल होता है, ऑलराइट। सो बेसिकली वी कैन से दैट जितना ज़्यादा मास अगर सन का होगा तो वो उतनी दूर तक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दूसरे प्लैनेट्स को होल्ड अप कर पाएगा, राइट। चलो अभी हम देखते हैं सेवेंथ वन, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई इट इज इन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट। दैट मीन्स कि सिर्फ पाथ के बदलने से या फिर किसी बॉडी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं भी हो सकती है, राइट, बट डिपेंड होता है सिर्फ उन दोनों के बीच के डिस्टेंस एंड उन दोनों के जो मासेस हैं उन, बस उसके अलावा नहीं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, आर का जो स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, that distance should be measured from the center of both the bodies. Always remember this thing. This things काफ़ी बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं. It is always an attracting force. It is never repulsive. ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को धक्का मार के दूर फेंक देती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, जस्ट लाइक सन इज अट्रैक्टिंग दी अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, और जुपिटर और मरकरी और वीनस और मार्स, कुछ भी, राइट। दैट इज द मेन थिंग, अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं,
लेक्चर 2 पे आते हैं। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशन। जैसे कि हम लोगों ने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर देखा था, राइट, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसका प्रूफ कि भाई सचमुच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है कि नहीं, कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका हमें प्रूफ मिलता है। वो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि भाई सन के चारों तरफ अर्थ वगैरह जो अदर प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रही हैं, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। उसकी तरफ आप देख सकते हो उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन में आप देख सकते हो टाइड्स, लाइक लो एंड हाई टाइड्स वहाँ पर होती हैं। वो भी एक यू कैन से द पॉसिबिलिटी है कि दीज आर एक्चुअली द एविडेंसेस जो कि आपको बता सकते हैं कि येस दिस फोर्स येस एग्जिस्ट, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। और न्यूटन लॉ का जो ग्रेविटेशन लॉ है वो क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट है ना, हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो हर दूसरी बॉडी पे एक अट्रैक्टिंग फोर्स लगाती है। ये जो दोनों यहाँ पर बता रहे हैं दीज आर एक्चुअली द सेम थिंग, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है ये इसी पे बेस्ड है, और ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविट मोशन है, राइट, ये इन दोनों को फॉलो करते हैं, राइट। ये हम लोग कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए कैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज देखो ऐसा होता है कि कोई भी बॉडी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो दूसरे बॉडी पे भी फोर्स लगाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दूसरी बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी पे फोर्स ना लगाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप खुद से देखो कि लेट्स से आपने बॉल ऊपर फेंकी तो वो बॉल नीचे आ रही है। बॉल जब नीचे आ रही होगी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ बॉल पे फोर्स लगा रही है, ऐसा नहीं होता है। बॉल भी अर्थ पे फोर्स लगाती है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर आ जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसे आता है, लेट मी टेल यू, वो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइक दिस, देखो अभी हम लोगों ने ये देखा है, हमें ये पता है फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, राइट। और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूले, एक्सेलरेशन का अगर मैं टर्म निकालती हूँ या फिर फॉर्मूला निकालती हूँ तो इट वुड बी f/m, राइट। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली आती है असली चीज़। कैसे, अर्थ है बहुत बड़ी, उसका मास है बहुत ज़्यादा, राइट। अर्थ है बहुत बड़ी, उसका मास है बहुत ज़्यादा, तो आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा, छोटा सा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, छोटा सा वैल्यू है। तो इसका मतलब जो अर्थ और बॉल है, अर्थ बॉल पे फोर्स लगाती है तो बॉल उसकी तरफ चली आती है। क्यों चले आती है, बिकॉज बॉल का मास बहुत कम है। एज यू कैन सी है, मास अगर बहुत कम होता है तो एक्सेलरेशन वुड बी ग्रेटर, और जिसकी वजह से सेम फोर्स, ये जो सेम फोर्स इन दोनों के बीच में है, उसी की वजह से बॉल पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है और अर्थ पे एक्सेलरेशन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब अर्थ बॉल पर फोर्स लगाती है तो उसे अपनी तरफ खींचती है, राइट। लेकिन ये बॉल जो है वो अर्थ पे फोर्स लगाती है एज अ रिएक्शन, ठीक है, वो भी फोर्स लगाती है, सेम फोर्स लगाती है इवन, बट एक्चुअली में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो उसके तरफ नहीं जाती, ठीक है। इसकी वजह से अर्थ बॉल की तरफ नहीं जाती बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, अगर मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन इज़ वेरी लो, इतना लो कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अर्थ जो मूव करने की कोशिश करेगी उसका तो एक्सेलरेशन ही बहुत कम होगा, तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। वहीं पर आप देखो जो मास है बॉल का वो बहुत 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 कम है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन वुड बी वेरी लार्ज, एंड दैट्स वाई वो उसको मूव करते हुए दिखाई देती है कि वो अर्थ की तरफ जा रही है, राइट। सेम फोर्स है, एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ हो रहा है। अगर अर्थ बॉल पे फोर्स लगा रही है एज एन एक्शन, तो बॉल भी अर्थ पे फोर्स लगा रही है एज अ रिएक्शन, बट सेम फोर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है। इसकी वजह से हमें जो अर्थ है वो मूव करते हुए नहीं दिखती टूवर्ड्स द बॉल, राइट, लेकिन हमें बॉल दिखती है मूव करती हुई टूवर्ड्स द अर्थ, और राइट, यही इसका मेन कंसेप्ट है। तो ये इसका मेन चीज़ था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया था बिटवीन दी सन एंड दी अर्थ। तो हमने सन का मास देखा, अर्थ का मास देखा, एंड देन वी कैलकुलेटेड द फोर्स बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से द अर्थ इज बाउंडेड टू द सन, और राइट। उसके अलावा हमने मून एंड उसमें भी देखा, अर्थ में देखा, तो इनमें भी हम लोग यही जानते हैं कि इकलौता यही फोर्स ग्रेविटेशनल है जिसकी वजह से दे आर बोथ बाउंडेड, राइट, एंड द मून मूव अराउंड द अर्थ। अब देखो ग्रेविटेशन वीएस ग्रेविटी,
ये जो है ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं बट कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ये जो ग्रेविटेशन होता है ये दो बॉडीज़ के बीच में होता है, लेकिन वो जो दोनों बॉडीज़ होती हैं उनका मास का ऑर्डर इज सेम। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बड़ी अर्थ और बड़ा सन, तो दीज टू आर एक्चुअली द बॉडीज हैविंग द मास ऑफ द सेम ऑर्डर। वहीं पर अगर हम बात करें दो ऐसी बॉडीज की जिसमें से एक बहुत बड़ी है जस्ट लाइक द अर्थ और एक बहुत ही छोटी है जस्ट लाइक अ बॉल और अ स्टोन, राइट, तो इन दोनों के लिए अगर हम बीच में बात करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट वुड बी टेकन एज अ ग्रेविटी, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं सेम टू सेम या फिर सेम ऑर्डर के मास की ऑब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो उन दोनों के बीच में भी लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको हमने सिंपल बोल दिया ग्रेविटेशन। सो बेसिकली ये जो ग्रेविटी है वो एक केस है जहां पर एक बॉडी, दो बॉडी थी, ठीक है, सेम मास की थी। अब इसमें से क्या हुआ, एक बॉडी तो बहुत छोटी हो गई और एक बॉडी बहुत बड़ी हो गई, तो ये जो कंडीशन हो गया, अब जो फोर्स लग रहा है दैट वुड बी ग्रेविटी, राइट। तो बस कुछ भी नहीं हुआ, मासेस में ऑल्टरेशन हुआ, सेम मासेस होंगे तो यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर एक में कम मास होगा एक में ज़्यादा मास होगा तो यू कैन सी द ग्रेविटी, ठीक है। बस इसमें और कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट ये भी आप देख सकते हो कि जो बड़ी बॉडीज़ हैं, जो दो सेम टू सेम बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, उन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी बिकॉज स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। वहीं पर नहीं, जैसे एक दूसरे की तरफ मूव करते नहीं बट वो एक दे विल बी बाउंडेड टूवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो आपको वहाँ पर जो फोर्स है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको नेग्लिजिबल कर दो, राइट, बट इट वुड बी वेरी मासिव। जैसे कि अर्थ और सन की बात करें तो इट वुड बी वेरी मच मासिव, क्योंकि मासिव बॉडीज़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंसेस भी मासिव होगा, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करती बट दे ट्राई टू डू सो। जैसे अर्थ है वो डेफिनेट सी बात है कि वो सन के चारों तरफ मूव करती है, राइट। तो दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी सन, है ना, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं चाहती, वो सन की तरफ नहीं चाहती। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो बॉल अगर ऊपर जा रही है तो वो नीचे ज़रूर आती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। सो मूवमेंट अगर होगा छोटी बॉडी का, स्मॉल मास बॉडी का टूवर्ड्स अ लार्ज मास बॉडी, वो मूवमेंट होगा ग्रेविटी में, एंड ग्रेविटेशन में इट वुड बी अट्रैक्टेड बट इट विल नॉट मूव टूवर्ड्स द सन। अर्थ सन की तरफ मूव नहीं कर रहे, उसके सेंटर की तरफ मूव नहीं कर रहे, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स, ठीक है। अब देखो तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई जो ग्रेविटी होती है वो एक स्पेशल केस होता है ग्रेविटेशन लॉ का, एंड दैट वुड बी इट, राइट, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हमने फिर क्वेश्चन भी किया था, ऑलराइट। चलो अब हम गैलीलियोस के ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन ने ये बोला था कि जो बॉडीज़ होती हैं उनको अगर हम सेम हाइट से फेंकेंगे, ठीक है, एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी को सेम हाइट से फेंकेंगे तो वो नीचे पहुंचने में सेम टाइम लगाएंगे, ऐसा गैलीलियो ने बोला था, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई ये तो सच बात नहीं है, बिकॉज हमने देखा है पत्थर जल्दी गिर जाता है और एक फीदर आराम से आता है, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है। तो उन्होंने इसका रीज़न भी दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो यू कैन से लाइटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हैवी, जैसे कि स्टोन, कॉइन, कोई एक मेटल का ब्लॉक, राइट। तो यू कैन से कि ऐसी बॉडीज़ जैसे होती हैं वो डेंस होती हैं। डेंस मतलब बहुत ज़्यादा उनका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ वेरी मच हाई, तो दैट इज़ द डेंस बॉडीज़। ये जो डेंस बॉडीज़ होती हैं दैट्स वाई उनका मास कैसा होता है, कंसनट्रेटेड होता है, उनका सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से गिर जाती हैं। एयर रेजिस्टेंस इन पे कम काम करता है। वहीं पर अगर हम उसकी बात करें, लाइटर बॉडीज़ की बात करें, तो ये जो लाइटर बॉडीज़ होती हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ड्यू टू विच इन पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, एंड दैट्स वाई दे टेक टाइम व्हेन दे फॉल, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक क्रश्ड पेपर को फेंकोगे और एक पूरे फ्लैट पेपर को फेंकोगे, तो जो क्रश्ड पेपर है उसके ऊपर लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है दैट वुड बी लो। लेकिन अगर एक फ्लैट पेपर है, आपने उसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया तो उसका एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, राइट, जिसकी वजह से उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, एंड दैट्स वाई द सेम पेपर एक क्रश फॉर्म में एक फ्लैट फॉर्म में दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं। बट अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, both the bodies will fall simultaneously and they will reach up to the ground at the same time, ऐसा उन्होंने जो है बताया, ठीक है। तो गैलीलियो का ये एक प्रेडिक्शन था, उनका आर्ग्यूमेंट था। हालांकि उस वक्त तक ऐसा कुछ पता नहीं था,
ग्रेविटेशन का लॉ ऐसा वैसा नहीं आया था, बट उसके पहले भी उन्होंने ये जो चीज़ है बताई थी, ऑब्जर्व की थी। इसके बाद जो रॉबर्ट बॉयल हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि गैलीलियो जो बोल रहे थे क्या वो सच बात है, लेट्स डू दैट। तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी लंबी ट्यूब ले ली, ठीक है, उसके एक ट्यूब के अंदर उन्होंने कॉइन डाल दिया, एक हैवी ऑब्जेक्ट, और एक में फेदर डाल दिया, ठीक है। फिर उन दोनों को क्या किया, उन दोनों के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उन दोनों को हटा दिया, ठीक है, एयर को हटा दिया। अब वहाँ पे वैक्यूम से भरी हुई ट्यूब्स हैं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएटेड हो चुका है उन ट्यूब्स के अंदर, एंड उनके अंदर एक में कॉइन और एक में फेदर है। फिर इन ट्यूब्स को उन्होंने उल्टा कर दिया, तो जो टाइम उन दोनों ने लिया वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट था, और तब जाके उन्होंने ये पता किया कि गैलीलियो ने जो बोला था वो एक्चुअली में सही था। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं तो दोनों बॉडीज़, जो कि एक फेदर है एक स्टोन है, दे विल फॉल एट द सेम टाइम, ऐसा उन्होंने प्रूव किया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, ठीक है, और आप खुद से देखो, जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो आप किसी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंकोगे, राइट, वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे, धीरे 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 क्या होगा, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगी इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब देयर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा एसेलरेशन है जो कि क्या कर रहा है, इसको करने की कोशिश कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऐसे एसेलरेशन है जो कि नेगेटिव है, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ने की, तो जब हम उसको ऊपर पकड़ के रखते हैं, दैट इज द जीरो वेलोसिटी, छोड़ देते हैं तो देखो वो कितनी तेजी से नीचे जाती है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो से तेजी से बढ़ता जाता है, दैट मीन्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और वो भी एक एसेलरेशन की वजह से होता है, पॉजिटिव एसेलरेशन की वजह से होता है, राइट। यहाँ पर देखो, जब हम बॉल को क्या करते हैं, किसी एक एंगल पे फेंकते हैं, तो जब हम किसी एंगल पे फेंकते हैं तो वो कैसा पाथ फॉलो करती है, वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है, राइट। ये जो पाथ उसने फॉलो किया वो क्यों नीचे है, उसका डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ, राइट। इसके लिए भी कारण कौन है, इसके पाथ के लिए, जो ये पाथ फॉलो करती है, इस पाथ के लिए कारण कौन है, acceleration due to gravity. So basically there is acceleration acting on this ball, and that acceleration is provided by the earth, and that is why this is known as the acceleration due to gravity, ठीक है। तो वो होता है acceleration due to gravity, and this is represented by small g, alright। उसके बाद देखो हमने क्या किया था, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश किया था। फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अर्थ और एक बॉडी के बीच का फोर्स देखा, ठीक है, m मास की बॉडी थी, ठीक है, और ये m E यानी कि अर्थ का मास, आर ई यानी रेडियस का, अर्थ का रेडियस, राइट, एंड उसका स्क्वायर, एंड दिस इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते हैं, और यहाँ से अगर हम एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सो लेट्स डू दैट, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि क्या होगा, सिंपल एसेलरेशन है, वो हम कैसे लिखते हैं, फोर्स बाय m, मास ऑफ द बॉडी। व्हेन वी डिड दैट, तो हमें पूरा का पूरा जो फोर्स है उससे हमने क्या किया, मतलब मास से हमने इस पूरे फोर्स को डिवाइड किया, सो दिस मास इज कैंसिल आउट बाय दिस, ऑलराइट, एंड यू विल बी गेटिंग द फॉर्मूला gme डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। सो द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका फॉर्मूला क्या हुआ, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, r स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनी प्लैनेट ऑल्सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द मेन फार्मूला। और अर्थ का वैल्यू फिर हमने कैलकुलेट भी किया, जी का वैल्यू रख के, अर्थ के मास का वैल्यू रख के, अर्थ के रेडियस का वैल्यू रख के, वी कैलकुलेटेड इट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। तो अगर ग्रेविटी इकलौता फोर्स होता है जो कि अर्थ पे अट्रैक्ट, जो है अट्रैक्शन शो कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सारी की सारी बॉडीज सेम एसेलरेशन से नीचे आने वाली है, मतलब सेम चेंज इन वेलोसिटी दोनों का होने वाला है हर एक ऑब्जेक्ट का, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि सारी बॉडीज सेम टाइम लेने वाली हैं व्हेन दे आर एक्टेड अपॉन द सेम, यू कैन से द फोर्स, राइट, दैट इज द मेन थिंग। अब इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, किसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही इसका डायरेक्शन होगा ऑलवेज, ऑलराइट, दैट इज द थिंग। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मून का एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट किया है, तो सेम फॉर्मूला, बट हम यहाँ पे जो मास है वो मून का यूज करेंगे, रेडियस है मून का यूज करेंगे, एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग दैट, एंड वी विल बी गेटिंग एज 1.63। और अगर हम एक और चीज देखें तो ये देख सकते हैं कि जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, दैट इज 1/6 ऑफ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, राइट। 1.63 वैल्यू होता है मून पे, राइट, एंड 9.8 वैल्यू होता है अर्थ पे, तो दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ, राइट।
ये होता है मून का और अर्थ का। ठीक है, अब हमने मास ऑफ द अर्थ निकालने की कोशिश की। मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ग्रेविटेशनल फार्मूला लिख दिया है, फिर हमने F इक्वल्स टू mg लिख दिया है एंड वी कैलकुलेटेड द g हियर, g ma अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रीअरेंज करके वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ द अर्थ। कैसे कैलकुलेट किया, हमें g का वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 और हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी पता है। इनको कैलकुलेट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। सो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ विद द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो डेंसिटी के लिए हम बात करते हैं, मीन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मीन डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, मीन डेंसिटी का मतलब होता है कि अर्थ जो है, हमने क्या किया, पूरे अर्थ को मीन बना दिया, मतलब उसका जो यू कैन से जो उसका डेंसिटी है, जैसे डिफरेंट रहता है, हर एक प्लेस पे डिफरेंट डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि कहीं पे पहाड़ हैं तो कहीं पे खाई है, राइट। सो जो पूरे अर्थ की सरफेस है दैट इज नॉट इवन, वो इवन नहीं है, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ स्फेयर, होल स्फेयर नहीं ले सकते। सो वी डिड इट बाय अज्यूमिंग दैट इट हैज अ डेंसिटी, और वी हैव कैलकुलेटेड द मीन डेंसिटी बाय अज्यूमिंग दैट इट हैज अ परफेक्ट स्फेयर। ठीक है, ये हमने माना है एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड। तो क्योंकि हम मीन डेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग किया डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से हम मास निकालेंगे तो दैट वुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम हम लिख रहे हैं किसका, स्फेयर का, बिकॉज वी हैव अज्यूम द अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फेयर। ठीक है, हमने माना तो हमने इसका जो वैल्यू है वो लिख दिया। नाउ उसके बाद हमने पूरा कैलकुलेशन किया। देखो g का वैल्यू कितना, gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो m है वो हमने प्रीवियसली कैसे कैलकुलेट किया था, इससे, तो दैट वुड बी डेंसिटी, दैट वुड द वॉल्यूम। फटाफट से यहाँ पे हमने मास की जगह पे लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया, देन वी कैलकुलेट दिस डेंसिटी हियर यूजिंग द फॉर्मूला सेम टू सेम। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन गेट द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट देखो कितनी आती है, 5474.8 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके अलावा आप देखो डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, मतलब अर्थ की डेंसिटी विद रिलेशन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम ऐसा करते हैं देन वी कैन गेट द रिलेटिव डेंसिटी, और अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दैट इज 5.5। ठीक है, अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 5.5 विद टाइम्स ऑफ द अर्थ की जो टाइम। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशंस आते हैं वो 3 टाइप से आते हैं। ठीक है, इट कैन बी विद द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब तुम अगर किसी माउंटेन पे जा रहे हो, माउंटेन पे चढ़ रहे हो, तो तुम्हारी जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो चेंज हो रही है, राइट। सो उस एल्टीट्यूड के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। डेप्थ के साथ, लेट्स से यू आर गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से तुम कितना डीप अंदर जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक है, एंड विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द लैटिट्यूड, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि भाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड से किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मेंशन किया दिस इज एन अर्थ। ठीक है, परफेक्ट स्फेयर, दिस इज द अर्थ परफेक्ट स्फेयर। हमने ये माना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है Q और P, ठीक है, ये Q और ये P है, तो दिस P पॉइंट इज एट हाइट h। वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P। ठीक है, P पे पता ना करना चाहते हैं कि भाई हम इतने दूरी पे चले गए, Q से लेके हम इतने हाइट तक चले गए, तो अब देखते हैं कितना आता है। तो हमने P पर निकालने की कोशिश की और Q पे निकालने की कोशिश की। ये एक परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है, तो Q पर, दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q पे तो सेम फॉर्मूला लगेगा G इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। बट ये जो P पॉइंट है अब कितना दूरी हो गया, सेंटर से कितना दूरी हो गया, R प्लस H, तो इट वुड बी लाइक दिस, एडिशन ऑफ बोथ दीज। तो हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट H, तो GM डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट्स हाउ वी डिड। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर।
यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन आउट ले लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे, सो वी विल बी गेटिंग अ वैल्यू लाइक दिस। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो कैसा बन जाएगा, मतलब इट विल बी, अभी तो नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली यूज फॉर दोज प्लेसेस जहाँ पर जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ और कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज स्टार मार्क्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एच अपॉन आर जो वैल्यू है, ये वाला जो फॉर्मूला है g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, दिस इज यूज्ड ओनली व्हेन द हाइट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर देखो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो पावर जो है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। -2 में जैसे ही पावर कन्वर्ट हुई दैट मीन्स 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। अब हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, तो यू कैन सी हियर 1 माइनस 2h बाई आर प्लस हाइयर टर्म्स ऑफ h बाई आर। अब इसकी हाइयर पावर होगी, h बाई आर जो है उसका हाइयर पावर होगा, तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला मिला अलग से g 1 माइनस 2h बाई आर। ये वाला फॉर्मूला तुम कब यूज करोगे, जब जो हाइट है वो बहुत 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 कम है रेडियस ऑफ द अर्थ से। लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू एट अ पॉइंट g इक्वल, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे तुम कैलकुलेट करना चाहते हो g का वैल्यू जहां पर सिर्फ लेट्स से 2-3 मीटर अबव दिस अर्थ सरफेस, 2-3 मीटर और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। दीज आर वेरी मच यू कैन से डिफरेंट, राइट, एक बहुत ही कम है, एक बहुत ही ज़्यादा है, तब तुम इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन अगर कंपैरेबल हाइट पे तुम यूज़ करना चाहते हो तो वो फॉर्मूला यूज़ करोगे जो मैंने तुम्हें अभी पहले बताया। ठीक है, अब देखो हम इसका परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, 1 माइनस 2h बाई आर। इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद यू विल बी गेटिंग, हमें क्या मिल गया, परसेंटेज डिक्रीज 2h बाई आर परसेंट। इट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि भाई g का वैल्यू चेंज हो रहा है बट कितना परसेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेप्थ के साथ। डेप्थ के साथ क्या होता है, डेप्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा अर्थ के, राइट। तो ये देखो ये है Q, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड एक्चुअली में ये एक इनर है, यू कैन से द इनर सर्कल इज एक्चुअली द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग डीप इनसाइड। ठीक है, हम इतना अंदर जा रहे हैं, इतना डेप्थ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर माना। ठीक है, पूरा सॉलिड स्फीयर माना। अब आप देख सकते हो पॉइंट Q पे यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं g का, है ना, gm बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे डेप्थ की बात कर रहे हैं। और ये जो Q है, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, अर्थ की पूरी डेंसिटी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीन डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेट करके रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ g एज कैपिटल G रो डेंसिटी ऑफ द अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर। ये वैल्यू हमें मिलेगा आफ्टर पुटिंग दी मास, जो कि क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये पॉइंट P, अब क्या हुआ, अर्थ की सरफेस से हम अंदर चले गए, d डेप्थ अंदर चले गए। अब ये P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और जो यू कैन से डेंसिटी होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ ये वाला जो स्फीयर है जो अब छोटा हो चुका है, ये वाला स्फीयर, इसकी वजह से यहाँ पर इस P पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो P पॉइंट के लिए आप क्या लिख रहे हो, एट डेप्थ D इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पे देखो GM डैश, अब मास चेंज हो गया क्योंकि क्या हुआ, तुम अंदर चले गए, द स्फीयर जो है वो छोटा हो गया तो मास अब वेरी हो गया। ठीक है, r माइनस डी का होल स्क्वायर, r माइनस डी क्यों, क्योंकि देखो P पॉइंट कहाँ है, ये टोटल r और ये उसमें से d हटा दिया, तो दिस इज द r माइनस डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द P। ठीक है, तो हमने r माइनस डी का होल स्क्वायर यूज किया। अगेन वी आर यूजिंग द डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास डैश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डैश, क्योंकि अब स्फीयर छोटा हो गया है तो वॉल्यूम भी उसका जो है डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो जाएगा एंड उसका मास भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी वुड बी द सेम, राइट। तो यहाँ पर वापस से हम m डैश का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा GD यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ, क्या मिल जाएगा, G 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ। जब आप अंदर की तरफ जा रहे हो, अर्थ के अंदर की तरफ जा रहे हो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तब वहाँ पे कैसा वैरी होगा, दैट इज द चेंज। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है।
फिर हमने क्या किया था, जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था सेंटर ऑफ द अर्थ पे, दैट इज 0, वी हैव कैलकुलेटेड एट 0। परसेंटेज डिक्रीज अगर तुम निकालोगे तो सेम फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस डी अपॉन आर, इसको रीअरेंज करोगे एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, डी बाय आर। तो दिस इज द मेन थिंग, अगर तुम्हें परसेंटेज डिक्रीज करना है तो यू कैन राइट ओनली डी अपॉन आर, दैट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, अब ये देखो, ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि तीनों सिचुएशंस को रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, देखो, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे तुम सेंटर ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ गए, यानी सरफेस की तरफ गए, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या हुआ, जैसे जैसे तुम जाते गए, यू कैन सी कि वैल्यू जो है जी की इंक्रीज हो गई। ये बात हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो 0 होता है, तो ये रहा 0, जी भी 0 और डिस्टेंस भी 0। अब जैसे जैसे तुम सेंटर से बाहर की तरफ आओगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी का वैल्यू भी बढ़ रहा है और रेडियस का वैल्यू भी बढ़ रहा है, एज यू कैन सी स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेंटर से सरफेस की, अर्थ की सरफेस की तरफ जाते हो तो आपको जो है इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है पॉइंट P, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम वैल्यू होता है ग्रेविटी का, दैट इज 9.8। तो 9.8 इज द हाईएस्ट वैल्यू यू कैन एवर गेट ऑफ जी। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है। अब जैसे जैसे तुम जी से ऊपर जा रहे हो, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के और ऊपर जा रहे हो, तुम किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम और ऊपर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो वैल्यू है वो चेंज होगा, वो डिक्रीज होगा। और वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि ये रिलेशन शो कर रहा है। ये जो कर्व है वो किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड यू कैन सी दिस लाइन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस पे जाते हो तो जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, 0 से लेके 9.8 होता है। फिर अगर तुम और ऊपर जा रहे हो और सरफेस जो है अर्थ का उससे भी ऊपर जा रहे हो तो वापस से जी डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। अब चलो आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि लैटिट्यूड की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या वेरिएशन आ रहा है। सो बेसिकली लैटिट्यूड की वजह से दो और रीजंस हैं जिनमें जो है वेरिएशन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ द अर्थ, बिकॉज इट इज नॉट स्फेयर इन रियलिटी, और दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड वी नो दैट अर्थ रोटेट। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से भी जो है वेरिएशन आता है जी में। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड होता है वो एंगल, ठीक है, वो एंगल होता है जो कि किसी प्लेस को, लेट्स से दिस ए इज द प्लेस, ठीक है, इस प्लेस को जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ लाइन। अब ये जो लाइन है वो इक्वेटर से कितना एंगल बना रही है, दैट इज द लैटिट्यूड, दैट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द इक्वेटर ज्वाइनिंग द प्लेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा दैट वुड बी द लैटिट्यूड। अब आप खुद से देखो, इक्वेटर पे अगर कोई प्लेस है तो इक्वेटर पे प्लेस जो है वो देख सकते हो आप, एंगल वुड बी 0, है ना। देखो एंगल वुड बी 0 है, और अगर तुम इक्वेटर पे किसी प्लेस की बात करोगे तो यू कैन सी इक्वेटर पे लैटिट्यूड इज 0 डिग्री। और अगर तुम बात करते हो पोल्स पे तो यू कैन सी दिस लाइन एंड द इक्वेटर इज मेकिंग अ 90 डिग्री, सो यू कैन से द पोल्स लैम्डा इज 90 डिग्री, लैम्डा इज द लैटिट्यूड, सो लैटिट्यूड इज 90 डिग्री, ऑलराइट, एट पोल्स। अब देखो शेप ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, एक्चुअली जो शेप है दैट इज नॉट टोटली स्फेयर, इट इज लिटिल बिट फ्लैटेंड एट द टॉप्स, यू कैन से एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इस शेप की वजह से पोल्स पर ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। क्यों, रीजन इज बिकॉज एज यू कैन सी हियर, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इक्वेटर का, दिस इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पोल, रेडियल यू कैन से पोल्स का। ठीक है, तो मतलब यू कैन सी द आर इज इक्वल्स टू आर पी प्लस 21 किलोमीटर, राइट। तो यू कैन सी जो इक्वेटर है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से ज़्यादा दूर है, 21 किलोमीटर दूर है अगर हम बात करें सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द पोल्स की। ठीक है, दैट इज द रीज़न कि जो पोल्स हैं उन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर दैन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, पोल्स पर ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। अब हम रोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो रोटेट करती है, अर्थ हमेशा रोटेट करती है, तो यू कैन गेट द वैल्यू एनी प्लेस। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेस क्या होगा, जो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ,
ओमेगा स्क्वायर दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा इज द लैटिट्यूड, ठीक है। अगर इस लैम्डा को तुम जीरो करो यानी तुम इक्वेटर की बात कर रहे हो, तो एट द प्लेस ऑफ इक्वेटर ये लैम्डा हो गया जीरो, यानी दिस प्लेस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। सो यू कैन गेट दिस वैल्यू राइट एट द इक्वेटर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रोटेशन की वजह से भी यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट जी, है ना। तुम्हें शेप ऑफ द अर्थ यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट जी, तुम्हें लैटिट्यूड की वजह से एक डिफरेंट जी मिल सकता है, तुम्हें यू कैन से डेप्थ की वजह से एक डिफरेंट जी मिल सकता है। सो वेरिएबल, यू आर गेटिंग अ वेरिएबल वैल्यूज ऑफ जी, स्मॉल जी का वैल्यू वेरिएबल्स हो रहे हैं। तो हम इसी वजह से ये देख सकते हैं कि हर जगह ये जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। डेप्थ के साथ चेंज होगा, एल्टीट्यूड के साथ चेंज होगा, प्लैनेट प्लेसेस पे चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट डिफरेंट जी होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होगा, राइट। लेकिन ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी एवरीवेयर। तुम कहीं डेप्थ की बात कर लो, एल्टीट्यूड की बात कर लो, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की बात कर लो, हर जगह पे दिस वुड बी द सेम। दैट इज द मेन डिफरेंस। यू कैन राइट दैम ऑल ऑफ देम, राइट, यू कैन डेफिनेटली राइट दैम। अब देखो, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मास। व्हाट इज दैट मास? मास इज एक्चुअली द कंटेंट इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। तो एक बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है मैटर का, दैट इज द मास, राइट। इट्स यूनिट इज केजी, राइट। एंड इसके अंदर ऐसा इसका नेचर है कि किसी बॉडी में जितना ज़्यादा मास होता है, उस बॉडी को मूव करवाने के लिए या फिर उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए यू विल बी नीडिंग अ ग्रेटर फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। एंड दैट इज नोन ऑल्सो नोन एज द इनर्शियल मास, ठीक है, उसे इनर्शियल मास भी कहते हैं। और एक और बात, बॉडी इज एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास नहीं हो, ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास तो ज़रूर होगा, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए हम लोग बीम बैलेंस का यूज करते हैं, और आप बीम बैलेंस को देख सकते हो। बीम बैलेंस में क्या होता है, दोनों ही तरफ एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स लग रहा होता है। फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। इस पे अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये वाला जो बैलेंस है वो ये नीचे हो जाएगा। इसके ऊपर अगर ज्यादा ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, है ना, तो ये जो क्या होगा, ये नीचे की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, है ना। और इसके ऊपर कम लगेगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। सो अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर होगा एट अ प्लेस, दोनों बॉडीज का मास बराबर होगा, तो इसका मतलब ये जो लाइन है दैट वुड बी द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो यही चीज देखने के लिए वी यूज द बीम बैलेंस, इसी मेजरमेंट को देखने के लिए। इट इज यूजिंग द मोमेंट्स हियर एक्चुअली, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है किसी बॉडी के ऊपर, दैट इज द वेट, ठीक है। तो ये जो वेट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि वेट हमेशा किसकी तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ वैल्यू, दैट मीन्स इट इज यू कैन से अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला होता है mg, ऑलराइट। इसका क्योंकि फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और इसको जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में आपको किसी बॉडी को यहाँ पे हैंग करना होगा, ड्यू टू इट ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रैच हो जाएगी, यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू थ्रू दिस स्केल, ऑलराइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर कितना वेट लग रहा है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। उसके बाद आप लोग दोनों का डिफरेंसेस लिख सकते हैं, मास और वेट का डेफिनेटली लिख सकते हैं आप, राइट। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, मून का अलग पता है, अर्थ का अलग पता है, दैट यू कैन कैलकुलेट द वेट, राइट। क्योंकि आपको मास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दैट वुड बी द सेम। चाहे आप उस बॉडी का मास अर्थ पे मेजर कर लो, चाहे उस बॉडी का मास आप मून पे मेजर कर लो, दैट वुड बी सेम, बट द वेट वुड बी डिफरेंट, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द वेट ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया ड्यू टू दीज, हमें मिला जो मून पे जो वेट होता है दैट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। दैट इज द ऑल्सो द रिलेशन। और हमने फिर एक और देखा ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। वो क्या होता है, 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। मतलब 1 kg के ऊपर कितना वेट लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 9.8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए बिकॉज इट इज यूज्ड इन द कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। अब आप देखो वेरिएशन इन द वेट ऑफ अ बॉडी। अब मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हर प्लेस पे कांस्टेंट होगा। और ये बात हमको पता है कि जी जो है वो वेरिएबल है, सिर्फ इस जी की वजह से जो वेट है बॉडी का वो भी वेरिएबल होगा। अर्थ के सेंटर पे वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो कम होगा। अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो कम होगा। पोल्स पे वेट ज़्यादा होगा,
इक्वेटर पे वेट कम होगा। ये जो वेरिएशंस हैं, दीज वेरिएशंस आर बिकॉज ऑफ द जी ओनली। तो अगर आपने ये रिमेंबर कर लिया कि जी पे किस किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है, तो आप वेट का भी वेरिएशन बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब इतना सा ही होता है कि देखो अगर कोई बॉडी को ऐसा स्टेट मिल जाए जहां पर उसे ऐसा लगे कि उसका वेट लूज हो चुका है, दैट इज नोन एज द वेटलेसनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लेट्स इमेजिन सम पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। अगर वो वेइंग मशीन पे खड़ा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस इंसान का जो वेट है वो मेजर करके दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉय और दैट पर्सन टूवर्ड्स द अर्थ, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेइंग मशीन का स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है, ड्यू टू विच आपको एज ए रिएक्शन आपको क्या मिल रहा है, आपको रीडिंग मिल रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, रिएक्शन फोर्स को मेजर करता है, ठीक है। ये अगर रिएक्शन हम खत्म कर दें, ये रिएक्शन अगर नहीं हो तो यू विल बी गेटिंग जीरो वेट, ऑलराइट, दैट इज द मेन थिंग। तो अगर मानो कि कोई इंसान वेइंग मशीन पे खड़ा होते होते ही गिर रहे हैं, दोनों चीजें गिर रही है, तो देयर वुड नो एक्शन एंड दैट्स व्हाई देयर वुड बी नो रिएक्शन, ड्यू टू विच यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। आपको पता है अगर कोई बॉडी एक्चुअली में वेटलेसनेस को फील करना चाहती है, तो इसका मतलब वेटलेसनेस का मतलब होता है कि सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है एंड द बॉडी इज फॉलिंग। जब कोई फ्री फॉल होती हुई बॉडी जा रही है, मतलब सिर्फ इकलौता फोर्स उसके ऊपर है, कौन है, ग्रेविटी, बस, और वो फ्री फॉल होते होते कोई बॉडी नीचे जा रही है, तो ड्यूरिंग दैट फॉल जो बॉडी है वो वेटलेसनेस को फील करेगी, ऑलराइट। फ्री फॉलिंग के दौरान हम ऐसा बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो, weightlessness may be defined as the state in which a body loses its weight due to free fall, right। free fall में जो भी body होगी that will experience the weightlessness। हमने उसके बाद एक demonstration भी देखा था कि अगर हम क्या करें, होल्ड करके रखें स्प्रिंग बैलेंस एंड स्टोन को, तो जो वैल्यू आपको नजर आएगी दैट वुड बी द वेट ऑफ द स्टोन। बट अगर आप क्या करो, इस स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दो तो ये नीचे गिरने लगेगा, उस वक्त आपको जो रीडिंग इस स्प्रिंग बैलेंस में दिखाई देगी दैट वुड बी जीरो, एंड इट इंश्योर दैट इम्प्रूव्स दैट कि वेटलेसनेस का फीलिंग उस वक्त फ्री फॉलिंग के दौरान होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एस्ट्रोनॉट वगैरह क्या होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो फील लगता है, उनके ऊपर जो एक्चुअली फोर्स लगता है दैट इज जस्ट ग्रेविटी। उसी की वजह से वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, कौन, स्पेसशिप, राइट। तो उसके अंदर बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट हमेशा वेटलेसनेस को फील करता है। तभी तो आप लोगों को मूवीज में फ्लोटिंग पीपल दिखाए जाते हैं व्हेन दे टॉक अबाउट द स्पेसशिप्स एंड ऑल, राइट। वो इसी वजह से दिखाई देते हैं बिकॉज वहाँ पर एक्चुअली द बॉडी जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही होती है, एक्चुअली में क्या कर रही होती है, फ्री फॉल कर रही होती है। तो इट इज जस्ट लाइक फ्री फॉलिंग। जब जब फ्री फॉलिंग होगा वहाँ पर क्या क्या होगा, वेटलेसनेस का फीलिंग होगा, एंड दैट्स व्हाई दे फील इट, राइट। तभी उनको जो है वेटलेसनेस फील होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन में सबसे पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स इलिप्स के ऑर्बिट में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। दिस इज लाइक दिस शेप इज इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। और जो सन होता है दैट इज एट वन ऑफ द फोकस, क्योंकि एक इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में से किसी एक पे सन सिचुएटेड है, ठीक है, और ये जो प्लैनेट है ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। ये उसका फर्स्ट लॉ है। सेकंड देखो, सेकंड में वो ये कहता है कि एक प्लैनेट एक फिक्स टाइम के अंदर सेम एरियल वेलोसिटी रखता है, दैट मीन्स वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द सेम टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो उसका जो एरियल वेलोसिटी है दैट इज सेम टू सेम, स्वाइप आउट जो करता है एरिया। तो यू कैन से हर कि प्लैनेट को इस ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको सी से डी तक जाने में भी लगेगा, एरिया वुड बी द सेम, बिकॉज यहाँ पे एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है हर एक प्लैनेट की, ठीक है। थर्ड लॉ देखो, दैट इज द लॉ ऑफ द पीरियड्स। यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक प्लैनेट का टाइम पीरियड, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड इज एक्चुअली टाइम पीरियड उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। आर क्यूब इज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू ए, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। सो इफ यू नो द सेमी मेजर एक्सिस तो उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। दिस इज द लॉ ऑफ द पीरियड्स, राइट। तो ये जो तीन लॉज हैं हमने देखे, ये जो लॉज हैं ये हर एक सैटेलाइट फॉलो करती है, हर एक प्लैनेट फॉलो करता है, एंड एक्चुअली में हर एक प्लैनेट जो सन के रिवॉल्व कर रहा है वो सब ये तीनों लॉज फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी।
कि भाई जब मोशन होता है ड्यू बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज दैट। सो मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको 10 लेना है या 9.8 लेना है, ठीक है, तो आपको हमेशा 9.8 लेना है अगर मेंशन नहीं है तो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर पहले से आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप वही वैल्यू यूज करें, भले ही वहाँ 10 दिया हो, भले ही 9.8 दिया हो, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है वैल्यू सो ऑलवेज यूज द 9.8, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि कोई बॉडी अगर क्या करे, ऊपर की तरफ फेंकी जाए, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें पता है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी का वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वहां पे यूज हो रहा है। So if you are using the equations of motion for a body going upwards, always use this a बराबर माइनस जी एन एस इक्वल्स टू एच। अगर आप ये इक्वेशंस रखते हैं ये वाली पूरा फॉलो हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस आप रिमेंबर कर सकते हैं इफ यू राइट और रिप्लेस दीज वेरिएबल्स, ठीक है। असली वाली इक्वेशन में अगर ये वेरिएबल्स आप लिख देते हो देन यू विल बी गेटिंग दी इक्वेशंस हियर फॉर द करेक्ट इक्वेशन यू कैन यूज, ठीक है। वहीं पे आप बात करो एक बॉडी जो कि डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है, अगर एक बॉडी डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए बराबर जी कर दोगे बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एस बराबर एच रख दोगे, तो यू विल बी गेटिंग दीज न्यू इक्वेशन एंड यू कैन यूज देम विदाउट एनी मिस्टेक, ऑलराइट। फिर आप देख सकते हो कोई बॉडी जितना वेलोसिटी से ऊपर जाती है उसी प्लेस पे उतना वेलोसिटी से ही वो नीचे आती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, जो बॉडी ऊपर जाने में टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेती है वो नीचे आने में भी उस पॉइंट तक उतना ही टाइम लेगी, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ऑलराइट। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट आप सभी को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, ऑलराइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द गुड थिंग ऑल्सो, दैट इज इट। फिर हमने क्वेश्चन भी किया था, राइट। So that is it. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.